Yeah. So good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Sagar. Good to see you back. So done with the revision? Yes, Nidhi. हो गया revision? Yes, sir. CFS and UPSC. CFS will finish off today. But before that, we'll try to revise and I'll try to ask you all. ठीक है? So you'll help me with the revision. Yesterday, someone told me कि थोड़ा सा duration ज़्यादा हो रहा है. Duration is a bit longer for the classes. So what I feel कि in between gaps रहेंगे for revision first of all, right? Test भी रहेगा उस समय पे and gaps will be there. So there you will find time for the revision. Secondly, if you are not able to get time, still अभी के लिए तो initially what we try कि we try to be ahead of the schedule. ठीक है? So that we are able to complete it on time. मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हूँ कि डिले हो कहीं से भी. So we'll try to be ahead of the schedule and be complete it all the syllabus on time. So अपन चालू करते हैं अभी अपना सीएफएस के रिवीजन से. सर बोलो. सर लाइव में ज्यादा अच्छा रहता है, एक साथ कंप्लीट होते जाता है, और रिकॉर्डेड देने से क्या होता है ना, फिर लिंक थोड़ा सा टूट जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। सो व्हाट आई विल ट्राई कि मैं चैप्टर दूसरा दूंगा ऐसे भी अभी. व्हाट वी आर डूइंग इट ऑन लाइव वी विल डूइंग इट ऑन लाइव एंड द रिकॉर्डेड चैप्टर्स लाइक टुडे आई विल बी डूइंग इट विथ एलओडीआर. आई विल बी गिविंग एलओडीआर. तो वो लिंक वैसे ही रहेगा बिकॉज एनीवे सीएफएस एलओडीआर का टेस्ट होना है साथ में. ठीक है. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है सर जो थोड़ा सा पहले हम लोग स्टार्ट। पॉसिबल मेरे लिए तो है, सब लोग के लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा आई डोंट नो. कई लोग तो डीले पोस्टपोन करने के लिए बोल रहे थे. 6:30 में अगर स्टार्ट होए तो आपके लिए भी ठीक रहे, 9 बजे तक। बट स्टिल वो सो हल्का काफी सा लोग का इशू ही है रहेगा ये. अभी। दिस इश्यू इज विद अ लॉट. आई नो many have already told me this ki they have this office, so that's why I've kept the timing till 8:30. I am trying to stretch it a bit. You must have seen. ठीक है. 8:80 8:30 8:85 45 तक. So सबके कंसेंसस में ही चलना पड़ेगा. ठीक है. फर्स्ट ट्राई टू रिवाइज फर्स्ट ऑडिट ऑफ सीएफएस. कल अपन ने देखा था CFS was required mandatory as per section 129 subsection 3 of the 3। Companies Act, right? 129 subsection 3 mandatory बोलता है CFS बनाना ही है. 129 subsection 4 क्या बोलता है? मुटाटिस मुटंडिस जैसा था वैसा का वैसा बना दो जैसा तुमने एसएफएस बनाया था as it is. You will prepare what CFS as well. Then we saw कि there might be some exemption provided to you under AS or Ind AS, right? There might be some exemption provided to you under AS or Ind AS. Then if you are not consolidating any of your component because of any exemption granted under AS, Ind AS or Companies Act, then it will be sufficient if the company complies with the provision of consolidated financial statement which is provided under schedule 3. So that's what I told कि अगर disclosure भी कर देते हो in the schedule 3 disclosure requirement, if you meet the disclosure requirement then it will be deemed that you are complying with schedule 3. Disclosure will be with regard to that we are not consolidating this component because of the exemption granted under this para of Ind AS or under para 31 of Ind AS because of this criteria. ठीक है. So what all exemptions we covered? Exemptions with respect to Companies Act. So firstly we saw कि company should not be a listed company or should not be in the process of getting listed either in India or outside India. Secondly, its parent company or its ultimately holding company will already be consolidating all its subsidiaries. जो मेरी subsidiaries है उसको already consolidate कौन कर रही होगी? मेरी parent company. And thirdly, I'll get the no objection letter, no objection certificate from my members of the company that I am not going to consolidate my subsidiaries, right? And if it's a wholly owned subsidiary then no question of getting the NOC.
but yes, if you are a partially owned subsidiary company, then you have to get the consent of all the members, including those who are not entitled to vote. Remember this, including all the members, including those who are not entitled to vote. Get in writing that we are not going to consolidate this all these subsidiaries, and therefore you'll get the exemption under Companies Act. Then we saw कि paragraph 31 of Ind AS 110 क्या बोलता था कि अगर एफवीटीपीएल में तुम अपनी सारी सब्सिडीज को रिकॉर्ड कर रहे हो, एंड इफ यू आर एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, इफ यू आर एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी एंड यू आर रिकॉर्डिंग ऑल योर सब्सिडीज एट एफवीटीपीएल, देन you are not liable to consolidate all your subsidiaries, all your investments, actually not even your subsidiaries, but you are not liable to consolidate all your investments if your parent company is already consolidating all the entities. However, it won't be required if your parent entity is also an investment entity, if your parent entity is also an investment entity, right? So अपना investment entity definition में देखे थे what were covered कि if you are obtaining funds from one or more investors, right? Similarly, you are investing funds solely on return from capital appreciation, और इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, डिविडेंड इनकम आ रही है, या तो तुम उसको कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में देखना चाह रहे हो. एंड लास्टली, you measure all the subsidiaries, all your investment at FVTPL, then you'll be called as what? Investment entity. Then we saw responsibility of parent. बताओ मुझे जल्दी से, प्रेरणा. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट, डू यू रिमेंबर? फटाक से प्रेरणा. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन चेक करना होगा. बोलो. फर्स्टली अकाउंटिंग पॉलिसी हैव टू बी वेरी कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना रहेगा. कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आइडेंटिफाई अ कंपोनेंट, राइट? बिकॉज़ फाइनेंशियल आइडेंटिफाई ऑल द रिपोर्टेबल कंपोनेंट. आइडेंटिफाई द कंपोनेंट के बाद क्या लेंगे अपन उससे? कंप्लीट इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेंगे. आफ्टर गेटिंग ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, विल यू चेक और नॉट कि वेदर यू हैव ऑब्टेन्ड एंड करेक्टली ऑब्टेन ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? Accurate financial. Accurate and obtain all the financial information. Third, रिपोर्टेबल सेगमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे. रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे. एंड सिंस दिस इज माय सब्सिडरी, राइट, दिस इज माय कंपोनेंट, सो एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन मी एंड माय कंपोनेंट could also be Harmonization of accounting. RPT. रिलेटेड पार्टी मत बोलो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विल आल्सो बी देयर, राइट? Yes. अप्रोप्रिएट फिर 3 पॉइंट थे अपने इंडेस से रिलेटेड. 3 पॉइंट इंडेस वाले. एक तो गैप कन्वर्जन बोल दिया, Consolidation adjustments. कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, Harmonization of accounting policy. एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट? दिस वर द Sir, ये रिस्पांसिबिलिटी ऑफ. यस सर, ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट वही है ना, परमानेंट और हाँ, करंट ईयर वाला? परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड टेम्पररी करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट. Then responsibility of the auditor of the consolidated financial statement. Responsibility of the auditor of the CFS. Auditor responsibility की क्या क्या थी? सबसे पहले तो कि I'll identify and validate कि what all requirements are there as per applicable FRF. फिर जो FRF की requirement है वो I'll check कि whether I have fulfilled all the requirements or not, whether the financial statement, whether the consolidated financial statement is prepared in accordance with applicable FRF, right? Then उसके बाद अपन ने क्या देखा था कि whether the financial statement give true and fair view. ये मेरे को responsibility है to express my opinion that whether CFS give true and fair view or not. Then 143 subsection 1 and 143 subsection 3, ये तो अपने responsibility of parent company. अच्छा, AOC1 याद है? AOC1 फॉर्म AOC1. हाँ, सैलिएंट फीचर्स वगैरह जिसमें दिया जाता है. फीचर्स देंगे, राइट? Subsidiary. Salient Component, features of yeah. your subsidiaries, right? Salient Subsidiaries. features of the subsidiary company will be provided along with the financial statement. ठीक है, तुमको अपने salient features बताने subsidiary के in form AOC1. इसके बाद अपन ने देखा था ऑडिट कंसिडरेशंस, क्या क्या ऑडिटर कंसीडर करेगा. तो पर्टिकुलरली ऑडिटर देखेगा कि भैया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एसएफएस जैसे बनता है पेरेंट का कंपोनेंट का, उसी के लाइन में ही सीएफएस बना है ना, सेम फ्रेमवर्क अप्लाइड है ना जो पेरेंट कंपनी ऑलरेडी फॉलो कर रही है. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते टाइम आई विल बी कंसोलिडेटिंग मेनी ऑफ द कंपोनेंट्स, and these components might be audited by another auditor, and therefore in that case I might be required to use the work of other auditor. Using the work of other auditor will require compliance with SA 600 using the work of other auditor. Then इसके बाद तुमने देखा था कि इसके बाद क्या था, पेरेंट और
हाँ, तुम्हारे अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, राइट। पेरेंट और कंपोनेंट की अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है कुछ कुछ जो एसएफएस में दी है, लेकिन अपने इसमें इंक्लूडेड ना हो। और ऐसी अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होगी? ऐसी इन्फॉर्मेशन जहां पे कंपोनेंट कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, राइट। एंड रिगार्डिंग proportion of the items of the component which is included in the financial statement in the CFS which is audited by the auditor. So ये सारी अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तुमको देनी पड़ सकती है। इसके बाद अपन ने देखा था कि ऑडिटर कौन हो सकता है? अपने स्टेट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिटर है वही अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर भी हो सकता है, राइट। और अगर 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 इफ कंपोनेंट ऑडिटर इज असिस्टिंग द CFS का ऑडिटर, देन दैट विल बी अ सेपरेट असाइनमेंट, ठीक है। दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द असाइनमेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर टू डू द ऑडिट ऑफ द कंपोनेंट। जो कंपोनेंट को ऑडिट करना है वो तो अलग है ही है उसका। what he is providing us with assigning or with assistance of the component auditor to the principal auditor, then that is a separate assignment, right? Remember all these points, छोटे मोटे, but this can come in MCQ as well। 600 में अपन ने देखा था मटेरियलिटी का कंप्यूटेशन। मटेरियलिटी का कंप्यूटेशन में 4 पॉइंट मुझे बताओ धनलक्ष्मी, फटाफट से। मटेरियलिटी के कंप्यूटेशन में ग्रुप लेवल पे क्या 4 पॉइंट देखे थे अपन ने? ग्रुप लेवल पे हैव टू सर एसेट्स को कंप्यूट करें, कंसोलिडेट करेंगे, एसेट्स को कंसोलिडेट करेंगे, कोई एडजस्टमेंट्स रहे तो आगे बोलो। मटेरियलिटी पे डिपेंड करते हुए। हाँ, और उसके अलावा अपन कंपोनेंट जो दूसरे अदर ऑडिटर है उनसे भी अपन कंफर्मेशन लेंगे कंपोनेंट ऑडिटर से इंडिपेंडेंस कोड ऑफ एथिक्स को लेके। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? इंडिपेंडेंस कोड ऑफ एथिक्स। यस, कोड ऑफ एथिक्स इंडिपेंडेंस से रिलेटेड ले लोगे कंफर्मेशन प्लस ग्रुप मटेरियलिटी सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो ग्रुप मटेरियलिटी मैं बोल क्या रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? ग्रुप मटेरियलिटी के टाइम ऑडिटर क्या क्या कंसीडर करेगा जब व्हाइल डिटरमाइनिंग ग्रुप मटेरियलिटी? सो उसके ऊपर में क्या दिया था कि भैया जब तुम एसएफएस का मटेरियलिटी डिटरमाइन कर रहे हो, व्हेन यू आर डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी फॉर द एसएफएस, देन यस यू कैन डू इट ऑन द स्टैंडअलोन बेसिस ओनली। बट व्हेन यू आर डिटरमाइनिंग एट ग्रुप लेवल, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ग्रुप लेवल डिटरमाइन करूंगा मटेरियलिटी एंड अकॉर्डिंगली आई विल असेस क्या कि कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कैसे करना है, वेदर डू आई नीड टू एडजस्ट दिस एडजस्टमेंट और नॉट, बेस्ड ऑन द मटेरियलिटी लेवल डिटरमाइंड एज पर ग्रुप। सिमिलरली उसके अलावा एक और था, ग्रुप लेवल ऑफ मटेरियलिटी डिटरमाइन करने से इट विल आल्सो असिस्ट मी टू डिटरमाइन कि मेरा कंपोनेंट मटेरियल है कि नहीं, वेदर कंपोनेंट इज मटेरियल और नॉट। एंड देन आई विल कम्युनिकेट द कंपोनेंट, एक एक कंपोनेंट की मटेरियलिटी आई विल कम्युनिकेट टू द कंपोनेंट इंडिविजुअली, कंपोनेंट ऑडिटर को। एंड देन आई विल आल्सो ऑब्टेन द कंफर्मेशन फ्रॉम द कंपोनेंट ऑडिटर रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस एंड कोड ऑफ एथिक्स, राइट। इसके बाद अपन ने यहाँ पे ब्रेक लेके तुम लोग को दिया था। इसके बाद से प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ सीएफएस। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ सीएफएस में मैंने क्या बताया था? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ सीएफएस में मैं क्या बताया था? ग्रुप स्ट्रक्चर चेक करना होगा, ग्रुप है, accounting ऑडिट प्रोसीजर है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, 600 यूजिंग वर्क्स ऑफ अदर्स एंड कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स। coordination of work CO सो एपी से क्या था? एपी अकाउंटिंग accounting policy and audit procedure। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गए अपने, और एक ऑडिट प्रोसीजर, एक अकाउंटिंग हो गया और एक ऑडिटिंग हो गया, राइट। इसके अलावा जी से क्या था अपना? पार्ले जी, ग्रुप स्ट्रक्चर, Group structure. अच्छा, ग्रुप स्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन ग्रुप स्ट्रक्चर, राइट। ग्रुप स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आईटी कंट्रोल एंड 600 और COO दोनों सेम दिखते थे, 600 एंड 600। तो 600 में अपन को ये देखना है कि क्या मैं अदर ऑडिटर का वर्क यूज कर सकता हूँ, एंड COO से कोऑर्डिनेशन वर्क विद द अदर ऑडिटर। तो यहाँ पे अपन इस तरीके से अगर तुमको बोलते हैं कि while planning what all things you will consider as an auditor while planning the audit of CFS। वीडियो आज भी लग कर है क्या? मैंने तो कल ही बनाया था, ठीक है, वार्म अप करने दो उसको थोड़ा। इसके बाद अपन ने बताओ, ये जो मेरे टाइम में क्वेश्चन आया हुआ है ये नवंबर 2020 में, दिस इज नवंबर 2020 क्वेश्चन, कि भाई जब तुम ऑडिटर एज एन ऑडिटर CFS का ऑडिटर हो तो तुम्हारे को बहुत सारी कंपोनेंट के बारे में पता चलेगा। एज आई टोल्ड यू, डू यू रिमेंबर L&T के मैंने बताया था बहुत सारी सब्सिडीज है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है। सो इट विल बी अ टीडियस टास्क फॉर यू टू कंप्लीट ऑल द इन्फॉर्मेशन, राइट, रिगार्डिंग सब्सिडरी कौन कौन है मेरी, एसोसिएट कौन है, जॉइंट वेंचर कौन है। सो व्हाट ऑल प्रोसीजर यू कैन परफॉर्म, व्हाट ऑल प्रोसीजर यू विल परफॉर्म टू एंश्योर कि तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरीज, तुम्हारे पास सारी चीजें। देखो क्या बोल रही है, ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट ऑल द कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स
have been included in the consolidated financial statement unless these components meet criteria for exclusion. So we have to ensure कि सारे मैंने components को include किया है in my consolidated financial statement. So what all points I will consider? What all points I will consider? सर इसमें 8 पॉइंट्स है, 5 याद करना ठीक रहेगा कोई भी? इट्स गुड कि तुम एटलीस्ट 5 रिकॉल कर पा रहे हो, बट इट विल बी बेटर कि अगर तुम 8 याद कर लो, ठीक है 5 भी रिकॉल हो रहा है तो एनीवे नॉट अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है. इफ यू आर एबल टू रिकॉल एटलीस्ट 5 ऑल्सो देन ऑल्सो इट्स फाइन. ऑन जनरली वॉट यू विल फाइंड कि अगर 8 पॉइंट्स दिए हैं एंड इफ दे आर आस्किंग फॉर अ 5 मार्क, इफ यू राइटिंग 5 पॉइंट्स देन दे विल गिव 5 मार्क्स. 5 मार्क अगर प्रॉपरली लिख रहे हो पूरा बराबर बराबर, तो दे विल अलॉट यू ऑल द मार्क्स. बट फॉर एमसीक्यू पर्पज या कभी कभी कैसा हो जाता है कि कुछ दूसरे पॉइंट से यहाँ से या कहीं यहाँ इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं होगा, बट इट कैन बी सो कि कुछ पॉइंट्स एकदम स्पेसिफिक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी हो. जैसे मैंने कल बताया, कल लास्ट क्वेश्चन ऑडिट ऑफ एनबीएफसी का लास्ट क्वेश्चन, डू यू रिमेंबर डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3. अब उसमें 4 पॉइंट का डिफरेंस दिया. व्हाट यू विल थिंक कि 4 पॉइंट डिफरेंस दिया, 4 मार्क 4 मार्क क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 विच ऑल्सो केम एक्चुअली नवंबर 19 में आया हुआ ये क्वेश्चन एग्जाम में. एग्जाम क्वेश्चन है नवंबर 19 का कि डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 इन द केस ऑफ ऑडिट ऑफ एनपीएफसी. तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, बट लास्ट अटेम्प्ट ओनली यू सॉ व्हाट कि सिर्फ सेकंड पॉइंट को ही पकड़ के उसने 4 नंबर पे पूछा है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड पॉइंट को पकड़ के, ठीक है. ओके सर. सो सबसे पहला बोलो वर्किंग पेपर. वर्किंग पेपर्स रेफर करेंगे. वर्किंग पेपर पुराने रेफर साल करोगे का। तो वर्किंग पेपर रेफर करके क्या मिलेगा तुमको, क्या समझ में आएगा? व्हाट विल यू फाइंड इन वर्किंग पेपर्स? कंपोनेंट्स Components कंपोनेंट्स Last है. year what all components were there in my financial statements, right? So I'll get to know about all this in my working papers of the previous year. Similarly parent की auditor ने क्या procedure perform किया, sorry not auditor but parent ने क्या procedure perform किया, right? How does the parent identify the component? parent कैसे identify करते हैं अपने बच्चों को? Then मैनेजमेंट की इंक्वायरी करें. मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे. regarding कौन सा what? न्यू component कंपोनेंट्स consolidate नहीं कर Which रहे हैं. new component have they identified any new component? Management inquire with the management that have they identified any new component? And इससे कैसे identify करेंगे, मैंने बताया था ये वाला point किससे link करोगे? Point number 3 को 8th वाले Eight पॉइंट point number 8 से आइडेंटिफाई how द चेंजेस. कि मैनेजमेंट कैसे बताएगा कि उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया न्यू कंपोनेंट? दे विल आइडेंटिफाई द चेंजेस बेस्ड ऑन शेयर होल्डिंग. तो मैनेजमेंट विल सी कि भैया अभी 40% था हमारी शेयर होल्डिंग इस एंटिटी में, एंड आफ्टर दिस फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द शेयर होल्डिंग हैज चेंज टू 65%. दैट मींस व्हाट? दिस इज अ न्यू कंपोनेंट व्हिच हैज एंटर्ड इन आवर पोर्टफोलियो. दिस इज अ न्यू सब्सिडरी, राइट? सो एनी चेंज इन द शेयर होल्डिंग 15% से 25% हो गया, न्यू एसोसिएट, राइट? सो दैट इज हाउ मैनेजमेंट कैन बी इंक्वायर्ड. सो ये 2 पॉइंट हो गए मैनेजमेंट इंक्वायरी से. मैनेजमेंट इंक्वायरी एंड आइडेंटिफाई द शेयर होल्डिंग चेंज. इसके बाद हमारे इन्वेस्टमेंट देखेंगे, कंपनी के इन्वेस्टमेंट. you will see the investments. इन्वेस्टमेंट बाय investment कंपनी कैसे एंड देखोगे? कंपनी. कंपोनेंट्स में. investment, how will you see the investment? Have you company audit हो गया तुम्हारा? Have you gone through MVP chapter 2. 2 MVP 2 right? MVP 2 में MVP तुम्हारे investments register रहता है जो maintain, उसमें तुमको समझ में आ जाएगा कि कितनी percent शेयर होल्डिंग है, investments, all this you will find every investment in your statutory records. All the investments review you can do it in statutory records while reviewing the statutory record. तो point number 4 और point number 7 भी लिंक करके चलना. And lastly ये 2 पॉइंट अपने मैं joint venture को रिव्यू करूंगा, कोई joint arrangement तो नहीं है अपने साथ, right? And similarly review the other arrangements entered into by the parent that have not been included in the consolidated financial statement in the group. ऐसा कभी कभार हो सकता है कि we have entered into some arrangement with any other entity but that is not treated because अपन ने कोई एक वेंचर नहीं क्रिएट किया है. वी हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड एनी कंपनी इन अ सेपरेट फाइनेंशियल एंटिटी, कोई क्रिएट नहीं किया है, बट वी हैव मर्ज्ड टुगेदर एंड entered into a new venture, entered into a new business without any incorporating any entity. So ये जो हमारा arrangement है, whether this is forming any sort of relationship or any arrangement because of which we might be required to treat this entity as joint venture, ठीक है? So that also you'll have to see. इसके बाद तुम लोगों ने देखा होगा ऑडिटर्स ड्यूटी इन द केस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ कंपोनेंट. ऑडिटर्स ड्यूटी इन द केस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ कंपोनेंट. तो यहाँ पे अपन ने एएस के पॉइंट डिस्कस किए थे. 2 एएस के एक्सक्लूजन है, 2 एक्सक्लूजन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफ यू आर नॉट लायबल टू कंसोलिडेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डू यू रिमेंबर?
दो एक्सक्लूजन sir. एज पर एएस। Temporary control. टेम्पररी अगर कंट्रोल था temporary- एक तो कि भैया जस्ट अभी अभी मैंने एक्वायर की एंटिटी इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली आई सोल्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सो इन while consolidating the financial statement in the month of May and while auditing the financial statement in the month of June or July, suppose the auditor will see what ki this was for temporary purpose, the investment done was for temporary purpose and therefore it need not be consolidated as on 31st March. Consolidation is not required, it's a temporary purpose consolidation and therefore AS grants exemption with regard to temporary consolidation. Secondly, दूसरा दूसरा है कि लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन है Repatriation फंड ट्रांसफर करने difficulty. पे। so long term restriction are in repatriating the funds. So I gave an example ki suppose you have incorporated any entity in tax havens, right, and there now you wanted to evade taxes or you wanted to save taxes, but however now that there is some restriction for the entity to transfer the fund back to India, and therefore in that case also you are not actually able to control the entity, and hence yes you can if you think that you don't want to consolidate the entity, yes you are exempt from the consolidation of the financial statement of that component. ठीक है, इसके अलावा इंडेस 110 का भी बताओगे? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑडिटर्स ड्यूटी क्या क्या बनती है इन द केस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ द कंपोनेंट? सो जनरली दे विल गिव सर्टेन सिनेरियो एंड दे विल आस्क यू कि व्हाट ऑल ड्यूटीज यू आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई। सो यू विल सी कि भैया टेम्पररी पर्पस के टाइम जब मैं एएस का ये दे वाला एग्जेम्पशन देख रहा हूँ तो मैंने बताया थी तुम्हारी मेन ड्यूटी क्या है। व्हाट इज योर मेन ड्यूटी व्हाइल यू आर सीइंग द टेम्पररी एक्सक्लूजन का टाइम? The date of investment. एज ऑन डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे को देखना है कि क्या ये पर्पस जो टेम्पररी पर्पस है ये एज ऑन डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा टेम्पररी है ना। आफ्टर डेट इवन इफ एज ऑन डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इट वाज फॉर द मेकिंग सब्सिडरी ओनली, मतलब प्रॉपर इन्वेस्टमेंट था लॉन्ग टर्म के लिए ही, बट आफ्टर डेट 4-5 मंथ्स में तुमने जल्दी सेल कर दिया। सो इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट हैज टू बी सीन ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कि डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में तुम्हारा क्या इंटेंशन था, राइट। तो ये सारी ड्यूटी तुम्हारी बनती है कि रीजन बताना व्हाई यू आर एक्सक्लूडिंग इट, राइट, एंड इन द शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि कौन से पैरा के अंदर कौन से इंडेक्स के कौन से पैरा के अंदर तुम्हारा एक्सक्लूजन हो रहा है, व्हाई आर यू एक्सक्लूडिंग दिस, हाउ आर यू मीटिंग द क्राइटेरिया एंड विच एंटिटी आर यू एक्सक्लूडिंग, राइट। सो ये अपन ने देखा था। फिर तुम्हारा कंपनी एएस रूल, कंपनी इंडेक्स के रूल्स। देन स्पेशल कंसिडरेशन देखा था अपन ने परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में। दो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट जनरली आते हैं यहाँ पे, जनरली नहीं एक्सक्लूसिवली, यू कैन से कि दो ही कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट आते हैं परमानेंट में। विच टू एंड व्हाई? बिकॉज गुडविल और कैपिटल रिजर्व और एनसीआई। गुडविल, कैपिटल रिजर्व या फिर एनसीआई। गुडविल, कैपिटल रिजर्व एंड एनसीआई। सो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, हाउ डू वी एक्चुअली कैलकुलेट एनसीआई? एनसीआई का कैलकुलेशन कैसे करते हो तुम लोग? दो मेथड होते ना, इंडेक्स 110 के हिसाब से। इंडेक्स और 110 के हिसाब से। एक तो 103 फुल वैल्यू होता है और एक पार्शियल। एक होता है पार्शियल। पार्शियल में क्या करते हैं अपन, जो नेट एसेट्स रहते हैं अपने उसी का 75% अगर होल्डिंग है मेरी एंटिटी में तो 25% में एनसीआई ले लूंगा, राइट। एंड फुल वैल्यू में मैं फेयर वैल्यू जो रहेगी उसका 25% लूंगा, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। सो इन बोथ द केसेस यू विल फाइंड कि एक बार अगर मैंने एनसीआई कैलकुलेट कर लिया, एक बार मैंने अगर एनसीआई कैलकुलेट कर लिया, सो दिस एनसीआई विल स्टे एज इट इज, जस्ट दैट पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस जो भी होता जाएगा, प्रॉफिट का पोर्शन जितना भी होगा 25% या लॉस का पोर्शन जितना भी होगा 25%, दिस विल ओनली बी चेंजिंग द एनसीआई, राइट। अल्टीमेटली जो ये मेन एनसीआई एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन अपन ने जो दिखा दिया एनसीआई को, दैट विल रिमेन सेम एंड देयरफॉर इट्स अ परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। सिमिलरली सेम इज द केस फिर गुडविल, बोथ विल चेंज ओनली इन द केस ऑफ शेयर होल्डिंग चेंजेस, राइट। अगर तुम 75% से अब तुम जा रहे हो 85%, देन ओनली दिस एनसीआई विल चेंज, दिस एनसीआई विल गेट डेबिटेड, एनसीआई डेबिट हो जाएगा 10% से, राइट, एंड रिमेनिंग एनसीआई तुम्हारा 15% बच जाएगा। एनसीआई डेबिट होगा 10% से और बैंक क्रेडिट होगा जितना भी तुमने दिया है, और बैलेंस तुम्हारा चले जाएगा कैपिटल रिजर्व, गुडविल या जैसा भी लगता है तुमको डिफरेंस जहां भी जा रहा है। So NCI and goodwill will change only when there is a change in shareholding and therefore these are treated as permanent consolidation adjustment. NCI can go negative or not in India's? जा सकता है सर, Yes. बिल्कुल जा सकता है। Yes, right. एक और- We can show it एक as बड़ा सा negative question figure भी है। also in the consolidated financial statement में तुम्हारा NCI negative दिख सकता है. You need not show it in asset side. However, AS में it is not allowed for you to show negative figure of the NCI. NCI का नेगेटिव कब जाएगा? जब सपोज यहाँ पे प्रॉफिट की जगह तुम्हारा क्या हो रहा है, लॉस होते जा रहा है एंड योर NCI वेंट Losses. नेगेटिव. So these points were there. यहाँ पे अपन अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्री एक्विजिशन रिजर्व हैज टू बी क्लियरली सीन. डू यू रिमेंबर अपने जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होते थे तो उसमें अपन डेट ऑफ एक्विजिशन जो रहता था और पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस के बीच में
अपना डेट ऑफ कंसोलिडेशन से लेके डेट ऑफ एक्विजिशन के बीच के जो भी चेंजेस होते थे वो अपन पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस में देखते थे। और पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस निकालने के लिए अपन को इंपॉर्टेंट क्या रहता था कि रिजर्व एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, प्री एक्विजिशन रिजर्व क्या क्या है, हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व कितने पड़े हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिटरमाइन कि हमारे पास रिजर्व कितने पड़े हैं बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन। सिमिलरली डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा डेट ऑफ एक्विजिशन है क्या, उसके लिए तुमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट डेट क्या है, व्हेन आर वी एग्जैक्टली गेटिंग द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। फिर उसके बाद जो भी चेंजेस है पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस भी तुमको देखने पड़ेंगे, वेरीफाई द चेंजेस, सब्सिक्वेंट एक्विजिशन, डिस्पोजल ऑफ कंपोनेंट। व्हाई? बिकॉज एक्वायर कर रहे हो अगर तो एज आई टोल्ड कि एनसीआई डेबिट होगा। सिमिलरली अगर तुम डिस्पोज ऑफ कर रहे हो एंड स्टिल आफ्टर डिस्पोजल आल्सो इट इज योर सब्सिडरी ओनली, तो एनसीआई क्रेडिट होगा। और एंड इवन आफ्टर डिस्पोजल इफ इट इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी तो सब्सिडरी की पूरी सब्सिडरी खत्म हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट हो जाएगा। सो ये ऑल दिस अकाउंटिंग यू मस्ट बी ऑलरेडी अवेयर अबाउट इन योर इंड एस 110। सो वहां पे अपन नहीं जाएंगे। गुडविल क्या सेट ऑफ किया जा सकता है क्या कैपिटल रिजर्व या जीबीपी से? इफ इन कंसोलिडेटिंग वन कंपोनेंट वी आर गेटिंग गुडविल एंड अदर कंपोनेंट वी आर गेटिंग जीबीपी, गेन ऑन बार्गेन परचेज, कैन वी सेट ऑफ? अगर एफआरएफ परमिट करता है तो कर सकते हैं set off. अगर एफआरएफ परमिट करते हैं तो देन वी कैन सेट ऑफ वेदर इट इज परमिटेड बाय इंड एस। इज इट परमिटेड बाय इंड Yes. एस? बोलो भाई। सर परमिटेड बाय एफआरएफ तभी कर सकते हैं। परमिटेड बाय FRF परमिटेड बाय एफआरएफ तो नहीं कर सकते हो। नहीं रहेगा तो कर सकते हैं परमिटेड बाय हाँ परमिटेड बाय एफआरएफ है तो कर ही सकते हैं, बट आई एम आस्किंग कि इंड एस अलाउ करता है कि नहीं करता है? Yes. यस इट इज अलाउड बाय इंड एस, ठीक है ना। करेंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में अपन ने देखा था बाकी जितने तुम एडजस्टमेंट करते हो, यूपी का एडजस्टमेंट कर लिए, राइट, अनरियलाइज प्रॉफिट का, अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया तुम्हारा। अदर एडजस्टमेंट्स लाइक इंट्रा सेल, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स और तुम्हारे इंट्रा ग्रुप लोन्स, interest payment among intercomponent transaction, all the intercomponent transaction, yes you can say Jagan is correct. And therefore all this adjustment with regard to harmonization, with regard to subsequent events or transaction as well will be treated as what? Current period consolidation adjustment. There we saw many of the points. Just मुझे बता दो एक बार फटाक से कि non adjusting event if it is material where will you disclose? Non adjusting event if it is material where will you disclose? Financial statements. In the notes to account, in the financial Yes, sir. statements. एएस में बोर्ड में होता AS था में बोर्ड रिपोर्ट AS में if you are following accounting standard then board report, ठीक Board है। और इंड एस के Ind केस AS में में फाइनेंशियल notes to स्टेटमेंट account. नोट्स टू अकाउंट, ठीक है Yes, sir. निधि। Yes sir. सर इसमें एक डाउट है, हाँ। आगे है थोड़ा सा। ये जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कंसिस्टेंसी वाला जो है, विच पॉइंट? इसके बाद है सर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, इस मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स के आगे है सर। पॉइंट कौन सा बोल रहे हो? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के ठीक ऊपर है फंडामेंटल अकाउंट, उसका पॉइंट नहीं दिया हुआ है, वही देखिए ना आप, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के ऊपर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड मींस व्हाट? वही तुम्हारे फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन कौन से होते हैं? 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है। यस सर, वो राघव ने जो लिखा है, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी एंड हाँ। गोइंग कंसर्न। आई एम गोइंग कंसर्न जी सी। तो ये कंसिस्टेंट होने चाहिए थ्रू आउट द कंसोलिडेशन। ये तुम्हारे सारे एंटिटी को फॉलो करना ही है, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस है। कहाँ पे रहे हो? whether the length of the reporting period of any difference। सर लास्ट से फोर्थ वाला बुलेट। एक सेकंड ना, बैटरी लो गई। कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। कंसिस्टेंसी टेल्स व्हाट कि अगर तुमने लास्ट ईयर फीफो फॉलो किया है सो यू शुड ट्राई टू फॉलो फीफो ओनली, द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और व्हाटएवर। सिमिलरली यहाँ पे अब तुमको बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा लेंथ ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड है, लेंथ ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड कभी तुम अप्रैल टू मार्च कर रहे हो और कोई दूसरे कंपोनेंट का जैन टू दिसंबर है। सपोज हो सकता है यू आर हैविंग योर प्रेजेंस इन एनी अदर कंट्री, जहाँ पे कंट्री अलाउ करती है तुमको कि यू कैन गेट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली, मतलब जो रिपोर्टिंग पीरियड तुमको सिलेक्ट करना है यू कैन सिलेक्ट दैट। तो चेंज हो रहा है अगर वहाँ पे रिपोर्टिंग पीरियड, सो यू शुड ट्राई टू बी कंसिस्टेंट कि वो एडजस्टमेंट करो प्रॉपरली। एंड लेंथ ऑफ जो रिपोर्टिंग पीरियड है, लेंथ जो भी रहना चाहिए तुम्हारा वो हमेशा कंसिस्टेंट ही रहे।
रिपोर्टिंग लेंथ पीरियड जो है तुम्हारा अप्रैल टू मार्च है अगर, सो अदर एंटिटी का भी अपन ने कल जैसे तुमने एडजस्टमेंट में देखा होगा कि बाकी एंटिटी का जन टू दिसंबर है, सो यू हैव टू देन एडजस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। तो वो जो एडजस्टमेंट है दैट हैज टू बी डन एंड इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। लेंथ ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड्स एंड एनी डिफरेंस इन द फाइनेंशियल ईयर एंड्स आर द सेम फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। हर साल वो कंसोलिडेशन में ऐसा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सर उसके एक पॉइंट जो नीचे है, इन सीएफएस कंपनी वुड नीड टू give all disclosures relevant to consolidated financial statement only and need not merely repeat the disclosure made by it in the CFS being consolidated। ये SFS हो जाएगा, सॉरी। सो जो SFS में कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो तुमको रिपीट ना करनी पड़े। सो yesterday also I might have told you कि नवंबर 2022 में एक एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है दिस पर्टेनिंग टू दिस ओनली। ये लास्ट तुम्हारा ये वाला, ये क्या बोलते हैं कि CFS में कुछ कुछ डिस्क्लोजर आर नॉट रिक्वायर्ड इफ इवन इफ यू हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड इट अंडर SFS। SFS में अगर तुमने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है सो यू नीड नॉट डिस्क्लोज इट अंडर CFS। there are certain financial information which are required to be disclosed again in CFS and there are certain information which you need not repeat in the SFS from the SFS into CFS। तो ये कौन कौन सी information है, like bonus share तुमने कहाँ से issue किया, so any of our component might have issued bonus share, ठीक है। like L&T का L&T Finance is one of its subsidiary, L&TI, LTI, Infotech with Mindtree, तो ये सारी इतनी सारी जो subsidiaries है। so suppose LTI Mindtree ने bonus share issue किया है and you feel what कि तुम्हारा बोनस शेयर ऑलरेडी वहां पे डिस्क्लोज्ड है LTI Mindtree के बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरीवेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट यू नीड नॉट डिस्क्लोज इट अंडर कि कहां से सोर्स ऑफ बोनस शेयर तुम्हारा वापस से कहां से डिस्क्लोज किया गया इन द L&T का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सिमिलरली ऐसे अलग अलग पॉइंट्स है जहां पे यू नीड नॉट डिस्क्लोज, तो यही वाला पॉइंट बोल रहे हैं वो कि इन द CFS द कंपनी वुड नीड टू गिव ऑल डिस्क्लोजर्स रेलेवेंट टू CFS ओनली एंड नीड नॉट मियरली रिपीट द डिस्क्लोजर मेड बाय इट अंडर SFS। वो सारे के सारे डिस्क्लोजर जो तुमने हर एक SFS में रिपीट दिए हुए हैं वो इसी को रिपीट नहीं करना है। जो CFS का रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर है उतना ही डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड तुमको करना है यार। वो जो तुमको CFS में बोला है कहा इंड AS 110 में, एज पर इंड AS 110 जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है अंडर शेड्यूल 3। सर वो AS21 का जो पॉइंट लास्ट में बोल रहा है, Further, AS21 also lays down certain principles that should be observed while giving the information which is part of the SFS of the components but need not be reported in the notes and other explanatory material of the CFS। Same है। AS21 ये प्रिंसिपल और गहराई में बात करता है, बोल रहे हो कि ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो तुमको SFS में तो तुमने बताई है बट यू नीड नॉट रिपीट इट अगेन इन द CFS। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। So disclosure requirement क्या क्या है, disclosure where it is not required, I hope you have gone through, ठीक है। These are important, this I also told you, this even this class ना which you have seen is just after like November 22 एग्जाम ही only, मतलब November 22 का एग्जाम के बाद की था ये रिकॉर्डिंग, बट उसके पहले कभी क्लास में मैंने आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन कि ये आ सकता है, ये आ सकता है एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज कि ट्राई टू फिगर आउट कि कौन सा क्वेश्चन आने को आ जाए अगर, सो हाउ इट विल बी आस्क्ड। देखो इंस्टीट्यूट ने कैसे पूछा था इसको, प्लीज मेंशन एनी 5 रिस्पेक्ट्स व्हिच आर गिवन इन द नोट्स टू द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पेरेंट एंड द सब्सिडरीज, हाउएवर इट नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड और इंक्लूडेड इन द CFS। ठीक है, एग्जैक्टली सेम लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ दिया उसने, मतलब जैसा था क्वेश्चन का आंसर का वही इसने क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया। ठीक है, सिंपल 5 मार्क क्वेश्चन था, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आउट ऑफ दिस 9 पॉइंट्स, यू वुड हैव गॉट द मार्क्स। अब आ जाओ अपना मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, देन कम टू रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में आ जाओ, रिपोर्टिंग एज एन ऑडिटर रिपोर्टिंग अपन देखेंगे। सो देखो दो चीज हो सकती है, या तो अपन ही भगवान है, अपन ही भगवान है मतलब सर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन वाला नहीं था उस वीडियो में। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट यू हैव टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग दैट यू आर फॉलोइंग। सो ऐसे 580 मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन है, ये हर जगह मिलेगा तुमको। सो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इट नेवर कम्स इन एग्जाम, बट हाउएवर इफ इट ऑल इट कम्स देन यू हैव टू समराइज ऑल द चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ कि ये कंफर्मेशन ले लेना मैनेजमेंट से दूसरा कंफर्मेशन ले लेना। लाइक सी हियर WR requires the auditor to obtain written representation from management where appropriate TCWG. The auditor of the CFS should obtain evidence that management of the parent acknowledges its responsibility for true and fair presentation of the CFS. So management से एक representation ले लेना कि management acknowledge कर रही है कि yes financial statement CFS that they have prepared
that CFS that they have prepared are giving true and fair view. And similarly, parent management has approved the CFS. In addition, the auditor of the CFS obtains WRL from parent management on matters material to the CFS. जो भी मैटर तुमको मटेरियल लग रहा है सीएफएस से रिगार्डिंग ऑडिट के लिए, ऑडिट से रिगार्डिंग, वो तुम सीएफएस में while doing the audit you can obtain the WRL from the management. एग्जाम्पल दिया हुआ है तुमको, एग्जाम्पल्स तुम देख सकते हो, 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है. जैसे तुम एक WRL ये ले लो मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट भैया ये बता दो कि तुमने जितने कंपोनेंट्स अपने सीएफएस में इंक्लूड किए ना वो सारे के सारे इंक्लूडेड है, कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो तुमसे छूट गया, कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है which you have left. So just take a confirmation from the management that all the components have been included in the CFS. Similarly, that they have identified the reportable segments properly. I can say what, तुम ये यहाँ पे ये बता सकते हो, जो तुम पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे थे ना ऊपर में, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे रिलेटेड एग्जांपल में तुम डाल सकते हो कि पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी, कि उन्होंने प्रॉपर इंडेक्स कंप्लाई किया है while preparation of the CFS, that they have identified all the components, that they have obtained all the information from the components. So ये सब confirmation अपन को मैनेजमेंट से ले लेना है, WRL ले लेना मैनेजमेंट से, that they have abided by their management's responsibility. Similarly देखो related party RPT, वही वाले पॉइंट हो गए. Appropriateness and completeness of permanent and current period consolidation adjustment. So consolidation adjustment भी parent की responsibility थी, one of the point, do you remember? So जितना अपन ने पढ़ा हुआ है वही सब आता है यहाँ पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में. दिस यू विल कम अक्रॉस इन अदर चैप्टर्स एज वेल, लाइक इन पर्टिकुलरली इन अदर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट. ठीक है, अब आ जाओ रिपोर्टिंग में. रिपोर्टिंग में व्हाट आई वाज टेलिंग कि या तो अपन ही भगवान है या तो अपन नहीं है. अपन ही भगवान है मतलब अपन ने ही सारे कंपोनेंट का ऑडिट किया हुआ है. वी आर ओनली द ऑडिटर ऑफ द पेरेंट एज वेल एज ऑल इट्स कंपोनेंट. और इट कुड बी सो दैट इट वी हैव नॉट ऑडिटेड ऑल द कंपोनेंट्स, राइट. ये दो केस हो गए. ये दो केस में कैसे कैसे रिपोर्टिंग होगी ये अपन को देखना है. ठीक है, दो केस कौन से हुए, सबसे पहले वापस, whether the parents auditor is also the auditor of all its component, and when the parents auditor is not the auditor of its components, when the parents auditor is not the auditor of its components. ये दो केस हो गए. दो केस ये हो गए कि सपोज माय कंपोनेंट इज इन यूएस. एक दो तीन कंपोनेंट है मेरी यूएस है, यूरोप में. सो यूएस वाली कंपोनेंट क्या फॉलो कर रही है, यूएस गैप फॉलो कर रही है. यूरोप वाली कंपोनेंट क्या फॉलो कर रही है, आईएफआरएस फॉलो कर रही है. सो इट कैन बी अ केस वेयर अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जनरली अकाउंटिंग पॉलिसीज है, गैप इज डिफरेंट बिटवीन द कंपोनेंट एंड बिटवीन द पेरेंट. ठीक है, और एक केस ऐसा भी हो सकता है जहां पे यूएस वाला ऑडिटर वहां के सीपीए जो एआईसीपीए है उसकी जो रेगुलेशन है, उसके जो स्टैंडर्ड्स है उसके तहत वो ऑडिट कर रहे हैं. दैट मींस व्हाट जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट स्टैंडर्ड्स में ही डिफरेंस है. वहां का ऑडिटर वहां के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट कर रहा है, हम अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट के हिसाब से ऑडिट करना चाहते हैं. सो देयर कुड बी टू डिफरेंस. क्या डिफरेंस अगेन, कि इट कुड बी बिकॉज either your principal gap could be different, right, or your gas could be different. Gas means what, generally accepted audit standard. Similarly, components not audited is the last case जहां पे अपना कंपोनेंट ऑडिट ही नहीं किया, कंपोनेंट ऑडिट ही नहीं हुआ. अभी तक 4 केस में एटलीस्ट ऑडिट हो रहा था, लास्ट केस में कंपोनेंट अगर ऑडिट ही नहीं हुआ है तो ये 5 केस में तुम्हारी रिपोर्टिंग कैसे होगी. ठीक है, अलग अलग केस में अलग अलग रिपोर्टिंग अपने को देखनी है. सबसे पहले केस में आ जाओ. सो वाइल ड्राफ्टिंग द ऑडिट रिपोर्ट, व्हाट डू यू थिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना खुद से दिमाग लगाओ एक बार, राइट, एंड टेल मी व्हाट डू यू थिंक. अगर तुम ही ऑडिटर हो सारे कंपोनेंट के तो कुछ बात है क्या डिस्कस करने लायक, कोई बात है क्या डिस्कस करने लायक. व्हाट विल यू, हाउ विल यू रिपोर्ट. तुम नॉर्मली जैसे रिपोर्ट करते हो वैसे ही करोगे ना. नॉर्मली कैसे रिपोर्ट करते हो, हाउ डू यू रिपोर्ट नॉर्मली, कंप्लाइंग द स्टैंडर्ड SA 700 फॉर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, to express or give a true and fair view, right, to give a true and fair view on the statement of affair as on balance sheet date, to give a true and fair view on the results of the financial statement, profit and loss account पे comment देना, true and fair view है कि नहीं, for the period ended 31st March 2023. so ये जो तुम नॉर्मली करते हो वही तो करोगे. getting this or not, नॉर्मली क्या करते हो तुम वही तो करोगे when you are only the auditor of all your components. so तुम नॉर्मली जो प्रिंसिपल अप्लाई करते हो, प्रोसीजर अप्लाई करते हो, रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करते हो, ये सब देखोगे कि सब फॉलो किया है कि नहीं मैनेजमेंट ने.
मैनेजमेंट ने हैज कंप्लाइड विद ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। अगर कहीं भी डेविएशन है तो फिर ऐसे 705 में मॉडिफाई करोगे, सेम सेम वही जो तुम करते आए हो ऑडिट जनरली अभी तक। तो वही सब है। ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा, एक्सप्रेस करेगा ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं सीएफएस, स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर इंक्लूडेड है तुम्हारे सीएफएस में तो यू ऑल्सो हैव टू गिव ओपिनियन ऑन योर सीएफएस। सिंपल है। सबसे पहले बोला कि सब मैनेजमेंट से चेक कर लो कि मैनेजमेंट ने सारे प्रिंसिपल प्रोसीजर फॉलो किए कि नहीं, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए कि नहीं। अगर नहीं किए हैं, इफ एनी डेविएशन, देन मॉडिफाई एज पर ऐसे 705 में मॉडिफाई कर सकते हो। तीसरा, तुमको ट्रू एंड फेयर व्यू अपना एक्सप्रेस करना, अपना ओपिनियन। ये हो गया पहला केस, फर्स्ट केस, सिंपल प्लेन नॉर्मल केस। सेकेंड केस में आओ, वेयर यू आर नॉट द ऑडिटर ऑफ ऑल योर कंपोनेंट्स। नाउ थिंक, अभी सोचो क्या करोगे। एनीवन? Using the work of another auditor. यूजिंग द ऐसे वर्क ऑफ 600. अनदर ऑडिटर, डेफिनेटली एकदम परफेक्ट। और कुछ सोच सकते हो जब अपन यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर करते हैं। सो आई टोल्ड यू यस्टरडे, क्या एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी? The procedure or the method followed. द प्रोसीजर और द मेथड फॉलोड विथ रिस्पेक्ट टू Deviation. एसए 600 में मैंने बताया था, एसए 600 में इंपॉर्टेंट थिंग कि यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर के टाइम पे व्हाट आर यू अलाउड टू, व्हाट आर यू अलाउड टू, आर यू अलाउड टू रिलाई ऑन योर अदर ऑडिटर्स? Yes. Right? Yes. So while you are relying on your other auditors, what all points would you consider while reporting? Materiality. Materiality definitely, but one important point कि तुमको बताना पड़ेगा। हाँ, क्या बोले? ऐसे 600 proportion of percentage of audit, proportion of audit, Divided responsibility, divided is divided responsibility मैंने बताया ना कि you have to disclose properly कि your responsibility is divided, your responsibility तुमको बतानी पड़ेगी। Although you are relying on the work of other auditor, but you will be held responsible only for the audit that you have carried out. लेकिन ये आप divided responsibility बताओगे कैसे? सेपरेटली डिस्क्लोजर करके कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी। हाँ, but how will exactly you will be telling? I told you ना yesterday कि other out matter of, para, हाँ, other matter para में अदर मैटर पैरा में जाएगा ये। वाई ऑल्सो दिस विल ऑल्सो सी, बट व्हाट आई वाज एग्जैक्टली ट्राइंग टू से इज कि तुमको ये बताना पड़ेगा कि टोटल एसेट में तुमने कितना प्रोपोर्शन ऑफ एसेट को ऑडिट किया है, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस में तुमने कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस या कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को ऑडिट किया है। That is how you will exactly report your reporting responsibility. That is how you will exactly divide your responsibility. कि मैंने इतना proportion का किया and I'll be held responsible for those proportion, right? And lastly ये मेरे को बताओ, ये जो अपन divide कर रहे हैं responsibility, क्या ये अपन कोई तरीके से modify कर रहे हैं क्या अपने audit opinion को? नहीं। What do you think? No, right? No. So that is what they say. See, reference in the report with regard to the fact that the part of the audit was made by other auditor, कि मैंने कुछ पार्टी किया और other part was done by the other auditor, is not to be construed as a qualification, but rather it is a divided responsibility between the auditors of the parent and its subsidiary. And auditor should consider the requirement of SA 600 में particularly तुमको जो रिपोर्टिंग करनी है वो you do in accordance with SA 706 in the other matter para. 706 particularly deals with two para, EOM and OMP. EOM para में अपन वो financial state वो matters disclose करते हैं which are already presented in the financial statement, ठीक है? And according to auditor which needs to be emphasized and needs to be brought to the attention of the users of financial statement. So users के दिमाग में उसको emphasize करवाने के लिए अपन reference देते कि जाओ note 16 में देख के आओ, जाओ note 15 में देखो ये वाला point important है. So we give reference to the notes in the financial statement. Why? Because EOM पैरा में अपन वो matter emphasize करते हैं which are already presented in the FS, जबकि OMP पैरा में we emphasize on the matters which with respect to auditor, with respect to audit, with respect to auditor की responsibility. What do you think with respect to auditor, audit responsibility, audit report, क्या लगता है तुमको ये तीन मैटर
डिस्क्लोज्ड होंगे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ये मैटर डिस्क्लोज होंगे क्या? नहीं. नो, राइट? एंड देयरफॉर these matters, how do they say that OMP para में क्या आएगा? OMP para में those matters will come which are not already presented or disclosed in the FS, but in the opinion of the auditor it is relevant for the auditor to make it attention to the users of the FS with respect to audit, auditor's responsibility and auditor's report. So यहाँ पे auditor's responsibility से related point है, इसलिए अपन कहाँ बताएंगे? 706 में OMP para में बताएंगे. ठीक है माया? यस सर. और डिवाइड कैसे करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो यहाँ पे. परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, परसेंटेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपोनेंट. जो भी तुमने ऑडिट नहीं किया वो बता दोगे, जो तुमने ऑडिट किया वो बता दोगे. देख लो एक बार देखना है तो शुरू के फर्स्ट टू केस. when you are the component, when you are the auditor of all the components and when you are not the auditor of all the provisioning अपन जो करते हैं based on classification of the assets, categorization of the assets, how exactly were we making provisions? क्या परसेंटेज था स्टैंडर्ड एसेट के लिए? क्या परसेंटेज था निकिता ऑडिट ऑफ एनबीएफसी में? बोलो. 0.5 फिर उसके बाद 10%, 30%, 50%. 0.5% कहा था. नहीं 0.40%. 0.40% और 0.25%, राइट? एज द केस में भी वो केस तुम लोग समझ जाओगे अपने आप. NBFI, NBFI, NBFC, NDSI. NDSI 40%. राइट. 0.4%, not 40. Yes. देन तुम्हारा 0.25 डाउटफुल was एसेट में 0.25. लेस देन 1 ईयर में कितना था? 10%. 10% तो सब स्टैंडर्ड में था. नहीं 20. ठीक है. 20, 30, 0.20. 50 करेक्ट प्रशांशा. एंड लास्टली लॉस एसेट में 100%. Right. ठीक है. कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या थी अपनी टीयर 1? 10%. हाँ 10% proper. तो यार Tier 1 10%. इट्स 10%. In case of gold, 12%. क्या बोल रहे? Gold NBFC 12%. ये In रही ना. case of other than gold NBFC ये आपके 10%. पैसे निकल गए. एंड CRAR ओवरऑल जो मेरा CRAR है टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल मिला के थोड़ा सा यहाँ पे 15%. ठीक है. ये हल्का सा. इसको सिल दूंगी. इसके अलावा अपना एनपीए जो क्लासिफाई करते हैं अपन वो कितने दिन में करते हैं इन द केस ऑफ लीज फाइनेंसिंग वाली जो कंपनी थी? 12 months. राइट. करेक्ट. 18 मंथ्स कौन है? जगन. 18 मंथ. इतने टाइम बाद तुम क्या, तुमको कोई पैसा नहीं दे रहा 18 महीने से तो तुम उसको परफॉर्मिंग मानते रहोगे क्या जगन? 12 मंथ 3 मंथ ऑब्लिक 6 मंथ. ठीक है. 12 मंथ 3 मंथ ऑब्लिक 6 मंथ. चलो आ जाओ अभी यहाँ पे. व्हेन द कंपोनेंट ऑडिटर reports on financial statement और financial statement is prepared under accounting framework which is different from that of parent. suppose parent अपनी इंडिया की है. इंडिया में क्या होता है? इंड गैप. ठीक है. बाहर IFRS फॉलो किया गया है या फिर बाहर यूएस गैप फॉलो किया गया है. ओवरऑल मैं बोलूं तो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क मेरी डिफरेंट है बिकॉज my few of the components are outside India. And therefore they have prepared the financial statement as per IFRS, as per US GAAP. Now what you will find is generally कि IFRS India's तो सेम ही है. You can say IFRS India's तो सेम ही है. And even US GAAP also. See, I have gone through all the three: IFRS, US GAAP, India's. US GAAP और IFRS में थोड़े बहुत डिफरेंस है and therefore you can see US GAAP और IFRS और India's. You can say there is a difference between US GAAP and India's. थोड़े से बहुत minute. Rest everything is straight. What I can say कि US GAAP जो होता है अपना generally is technical in the sense it is rule based. US GAAP को अपन क्या बोलते हैं? रूल बेस्ड बोलते हैं. जबकि IFRS इंड गैप को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बेस्ड है.
प्रिंसिपल बेस्ड मतलब अपन क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, क्या पॉलिसी फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम अपना फॉलो कर सकते हो। मतलब जो भी तुमको मेथड फॉलो करना है वैल्यूएशन अकाउंटिंग का, जो भी दैट यू कैन फॉलो बेस्ड ऑन योर पॉलिसी, योर असम्पशन, योर प्रिंसिपल्स। बट यूएस गैप इज रूल बेस्ड। यूएस गैप ने बोला ये यानी ये करना है। जैसे वन एग्जांपल आई विल शो यू, आई विल टेल यू कि जो तुम्हारा कंसोल कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, डिविडेंड रिसीव तुमको हो रहा है, अगर इफ यू आर रिसीविंग द डिविडेंड, हाउ विल यू क्लासिफाई द डिविडेंड रिसीव्ड? कहाँ पे जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा कि इन्वेस्टिंग में जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग में जाएगा डिविडेंड रिसीव, पूजा? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड रिसीव्ड की बात कर रहा हूं मैं, डिविडेंड पेड नहीं। राघव, पूजा, डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट ना, इन्वेस्टमेंट किए होंगे तभी डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड रिसीव्ड यू विल शो इट एज इन्वेस्टमेंट। हाउएवर इफ यू आर एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी तो कहां दिखाओगे? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में दिखाओगे, राइट? सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज प्रिंसिपल बेस्ड। ठीक है, आईएफआरएस इंड गैप इज प्रिंसिपल बेस्ड। लेकिन यूएस गैप ने बोल दिया डिविडेंड रिसीव चाहे तुम कोई भी हो हमेशा ऑपरेटिंग में ही दिखाओगे। यूएस गैप ने बोल दिया कि ऑपरेटिंग में दिखाओगे मतलब दिखाओगे वहीं पे। ठीक है, सो दैट इज अ फ्यू डिफरेंसेस दैट यू कैन सी इन यूएस गैप वर्सेस इंड गैप। ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस हाउ एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू कंसोलिडेट? ठीक है, दैट इज द पॉइंट। पॉइंट यहाँ पे आता है कंसोलिडेशन का, वेयर जहां पे लोकल ऑडिटर जो है, लोकल मतलब वहां यूएस का जो ऑडिटर है समझो, या लोकल जो मैनेजमेंट है, यूएस की जो मैनेजमेंट है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इंड गैप, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इंड गैप, एंड देयरफॉर हाउ विल दे रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू इंड गैप एंड गिव द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू अस? सो उस केस में क्या कर सकते हैं अपन? सोचो एक बार तुम लोग ही, उस केस में क्या कर सकते हैं? अभी जैसे यही केस में तुम क्या करोगे? बोलो भाई, जुगाड़ लगाओ, सॉल्यूशन। Understand the method. अंडरस्टैंड द, वो उनके फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर हम कोई पॉइंट पे स्टक है तो वी विल चेक विद देयर एफआरएफ। सो यू आर सेइंग कि हम उनके हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं सीएफएस बनाते बनाते, राइट? कन्वर्जन करना होगा। डिस्क्लोजर, कन्वर्जन करके डिस्क्लोजर कर सकते हैं। कन्वर्जन करके डिस्क्लोजर कर सकते हैं, कन्वर्ट करके डिस्क्लोजर। सो कन्वर्जन, हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू कन्वर्ट? वहां के ऑडिटर ऑडिट करने बोलेंगे, करेक्ट धनलक्ष्मी? वहां का ऑडिटर तो ऑडिट करेगा ही, वहां का ऑडिटर तो ऑडिट करेगा ही। सो व्हाट, क्या करूं मैं उसका? सिंपल है भाई, वहां का जो उसने ऑडिट करना है, दैट ऑडिटर विल डू द ऑडिट ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क विच इज एप्लीकेबल देयर। यूएस गैप के तहत करेगा तो यूएस गैप कर लेगा अपना। सेकेंडली what we will do कि we will convert the financial statement right into our in gap, and any adjustment required we will do the audit for that adjustment only। मतलब अपन वहां के ऑडिटर से तो रिलाई करेंगे, we can rely on their auditors report, we can rely on their financial statement, and after the conversion whatever conversion adjustments जो है उस adjustments को we will tell the management to convert the financial statement and adjust accordingly, and we will see कि adjustments क्या क्या हुए हैं। we will only check what? We will only check adjustments। ये एक ऑल्टरनेटिव हो गया। सेकेंड ऑल्टरनेटिव, दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? अभी मैंने बताया ना, लोकल ऑडिटर को आइडिया नहीं है कि कैसे इंड गैप का है, इंड गैप का आइडिया नहीं है। व्हाट इफ वी कैन गिव द आइडिया टू द लोकल ऑडिटर? आइडिया नहीं है तो आइडिया ले लो, राइट? सो इंड गैप के रिलेटेड उनको बता दो, एंड दे विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस, एंड देन दे विल सबमिट द फाइनेंशियल, convert the we will then get the financial statement as per Ind AS only, and accordingly we will consolidate and audit, accordingly management will consolidate and audit। so दो अल्टरनेटिव है ये दो अल्टरनेटिव है। एक तो अगर उनको आइडिया नहीं है इंड गैप की तो कोई बात नहीं, तुम अपना ऑडिट करवा लो, हम अपना कन्वर्ट करेंगे एंड कन्वर्जन एडजस्टमेंट को हम चेक कर लेंगे। सेकेंडली हम बोल देंगे कि तुम इंड एस के हिसाब से बना के दो, इंड एस के हिसाब से ही बना के दो। ठीक है, सो लेट्स सी क्या बोलता है यहाँ पे। Because of the presence in multiple geographies outside India, it could be so that accounting gap is different as compared to parent जो gap follow कर रही है। Foreign component जो financial statement under different FRF could be following a well known framework like US gap, IFRS follow कर सकते हैं वो लोग, और the local gap भी हो सकता है, like श्रीलंका में श्रीलंका IFRS है। ठीक है,
तुम्हारा साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क इशू किया हुआ है. नाउ श्रीलंका IFRS यू विल फाइंड इट इज इन टेंडम विद IFRS ओनली. सेम है एज इट इज है. लाइक जस्ट लाइक इंडिया जो है अपना मोर और लेस सेम है IFRS से. सो व्हाट दे आर सेइंग कि लोकल कंपोनेंट हो सकते हैं कि might not be able to report on the financial statement prepared using the parents की जो अपनी accounting principle है, generally accepted accounting principle which is parent का gap, parent का इंडेस के अकॉर्डिंगली हो सकता है उनको आइडिया ना हो, unfamiliarity हो, right? And when a component financial statement are prepared under an accounting framework which is different, मतलब वो बना रहे किसके तहत, US गैप के तहत, सपोज यूज बाय द पेरेंट से डिफरेंट है, द पेरेंट्स मैनेजमेंट विल परफॉर्म अ कन्वर्जन. अपन क्या बोलेंगे, पेरेंट के मैनेजमेंट को कन्वर्ट करो और जो एडजस्टमेंट है वो बताओ, हम वो एडजस्टमेंट को ऑडिट कर देंगे. सिंपल. ठीक है. पेरेंट्स मैनेजमेंट विल कन्वर्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपोनेंट यूज्ड बाय द कंपोनेंट टू द फ्रेमवर्क which is acceptable in India. which is acceptable in India means what, जहां पे हमारा CFS बन रहा है इंडेक्स के हिसाब से, जैसा CFS बन रहा है उसके तहत अपन बोलेंगे पेरेंट की वहां के मैनेजमेंट को कि कन्वर्ट करो. ठीक है. विल टेल द, सॉरी वहां की नहीं, हमारी पेरेंट की मैनेजमेंट को बोलेंगे कि कन्वर्ट करो. सेकेंडली, दूसरी, कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स आर देन ऑडिटेड. ओके फाइन, वी गॉट दिस. नाउ कंपोनेंट में ऑल्टरनेटिवली सेकंड ऑप्शन क्या अपने पास, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स अकाउंटिंग पॉलिसी. अपन बोलेंगे कि हमारे हिसाब से बना के दो as outlined in the group accounting manual to facilitate the preparation of the group financial statement. Principal auditor will perform procedure necessary to determine compliance of the group accounting policy. हमारा जो ग्रुप मैनुअल होता है कि भैया सारे के सारे कंपोनेंट ये ग्रुप मैनुअल फॉलो करेंगे, सबके सब अगर एक चीज फॉलो कर रहे हैं तो वही सब फॉलो करो, बिकॉज एनीवे वी हैव टू अडेयर टू द हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट? एंड दैट इज वाई एक ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल होता है, ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, जिसके तहत हम बोलेंगे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी इसी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से बना के दो. And this will ensure that the information prepared under the requirements of the group accounting policy will be directly usable. अपन डायरेक्टली उसको कंसोलिडेट कर पाएंगे एंड देयरफॉर देन वी कैन ऑडिट द CFS अकॉर्डिंगली. ठीक है. प्रिंसिपल ऑडिटर कैन देन डिसाइड वेदर और नॉट टू रिलाई अपॉन द कंपोनेंट्स ऑडिट रिपोर्ट. अपन रिलाई करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन अस, राइट? अगर सामने वाला ऑडिटर US CPA है तो ही इज एज गुड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली. AICPA, द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, AICPA. तो ठीक है, वहां का US CPA जो है वो उसने ऑडिट किया, सो देन वी कैन रिलाई, राइट? सिमिलरली अगर कहीं और एंटिटी में ऑडिटर जो है इज नॉट इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स दैट वी वांट, सपोज लॉयर भी वहां पे ऑडिट कर सकता है कोई एक एंटिटी, कोई एक जुरिस्डिक्शन में, देन वी विल सी कि वेदर कैन वी रिलाई और नॉट, राइट? कैन वी रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर और नॉट. सो दैट ऑल्सो यू विल हैव टू सी. प्रिंसिपल ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा वेदर और नॉट यू कैन रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर. ये हो गया तुम्हारा कौन सा, थर्ड केस, जहां पे तुम्हारा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है. चौथा केस जहां पे तुम्हारा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क तो सेम है, लेकिन 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 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इज डिफरेंट. यहाँ पे अपन स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट के तहत ऑडिट कर रहे हैं, वहां पे कोई और स्टैंडर्ड्स के तहत ऑडिट किया जा रहा है. तो बताओ क्या करोगे? सिंपल, विल हैव टू एंश्योर कि हम अपने स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट के तहत ही ऑडिट कर रहे हैं. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपन को फिर से एक बार स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट के तहत ऑडिट करना, एंश्योर करना है. सी, in order to maintain consistency of the auditing framework and to enable the parent auditor to rely and refer to other auditors audit report in their audit report on the CFS, the component financial statement should also be audited under a framework that corresponds to Indian GAAP generally accepted auditing standards. ठीक है, तुमको एंश्योर करने की तुम इंडियन अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत ही ऑडिट करवा रहे हो. इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स विल बी व्हाट, यू कैन रेफर टू व्हाट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. लास्ट केस, कंपोनेंट्स नॉट ऑडिटेड. ये केस मैंने कल बताया हुआ है लास्ट में मैंने बताया था कंपोनेंट्स नॉट ऑडिटेड. एग्जांपल भी दिया था, यूएस में बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, कैटरीना आ गई. कैटरीना पता है? यूएस में कैटरीना आ गई, पता है कि नहीं? कैटरीना साइक्लोन का नाम है. ठीक है. सो सपोज उसके कारण सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डैमेज हो गए. हरिकेन कैटरीना, यस. सो कैटरीना आ गई यूएस में, और हमारी इकलौती कंपोनेंट थी वहां पे. कहाँ पे? यूएस में, आउटसाइड इंडिया. वही डॉलर में अर्न करके देती थी. डॉलर में कमाओ, रुपए में उड़ाओ.
So now what will you do if the component is not audited? I told you yesterday also. CFS क्वालिफाई या मॉडिफाई करना पड़ेगा. CFS might be required, we might be required to qualify or modify based on the what? Based on we will have to consider कि वो जो component है वो हमारे लिए material है या नहीं है. If, as I said in the example, ki there is only one component which is present outside India, right? And therefore not in terms of quantity, quantitatively nahi dekhoge, but also in terms of qualitative measures also you'll see, and therefore that component will generally be material to you as a CFS auditor, and hence you will have to then what? Modify the auditor's report. So first of all, you will have to see ki whether the component is material or not to me. For if I do not consolidate the entity into my CFS, then what will happen? So see, generally the financial statement of all the components will have to be included. Have to be included. That means all the financial statement of all the SFS have to be included in the CFS. Such audits and audit procedure can be performed by the auditor reporting on CFS or by components auditor, right? ये audit कोई भी कर सकते हैं, या तो audit अपना auditor report या फिर दूसरा वहाँ का. Where the financial statement of one or more components continue to remain unaudited, अगर वो unaudited छूट रहा है, the auditor reporting on the CFS should consider unaudited components in evaluating a possible modification. हो सकता है अब तुमको modify करना पड़े अपनी CFS की auditor report को. CFS auditor report might be required to modify. CFS auditor's report might be required to modify to his report on the CFS. So you will have to see कि are you able to obtain sufficient appropriate audit evidence or not? Because when can we give an unqualified audit opinion? When we have obtained all the sufficient appropriate audit evidence and we form our opinion with respect to true and fair view. So if we are not able to obtain sufficient appropriate audit evidence, सब तो उड़ गया, बाढ़ में चले गया, कैटरीना लेके गई, कैटरीना लेके चले गई, in relation to such consolidated amounts या balances. So in that case you will have to consider what? Evaluate quantitative as well as qualitative factors regarding what? Modification. You will have to consider SA 705, whether are you required to modify your audit report. Are you required to modify your audit report? And for that matter, I also told you what? You will have to consider both quantitative as well as qualitative measure, both, while considering whether the component is so material that we need to modify our entire CFS की audit report. ठीक है? Yes or no? Responsibility of auditor. Responsibility of auditor क्या था पूजा? 5 पॉइंट. Responsibilities of auditor. बोलो बोलो बोलो. Auditor in the case of CFS क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? भूल गए? 1 घंटा तो नहीं हुआ अपने को रिवाइज किए. याद करो जल्दी, कोशिश करो. आई एम वेटिंग. बोलो भाई. You should require आइडेंटिफाई preparation of कंपोनेंट बोल रहे राघव. क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो. आई एम आस्किंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर ऑफ सीएफएस. मेरे को पता था ये गलती कोई एक करेगा, बिकॉज आई ऑल्सो डिड दिस मिस्टेक इन माई मॉक टेस्ट. और जनरली मैं बताऊँ इससे एमसीक्यू भी कैसे आएगा, इसलिए पर्टिकुलरली यू नीड टू डिफरेंशिएट द बोर्ड. पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बोलो पूजा. you should require preparation of CFS as per the applicable framework. You also check that it is prepared as per the required framework. Express the Give opinion your to a fair express opinion on true and fair view. Even check the Section internal 143(1). controls इंटरनल under कंट्रोल. internal financial control under 143(3) and section 143(1) करेक्ट. matters. So matters to be inquired as per section 143 subsection 1 and matters to be reported as per section 143 subsection 3 read with rule 10, right? And also in accordance with section 143 subsection 3 का clause I and H था शायद. ठीक है? I particularly you can remember because
एनीवे वी विल लर्न क्लॉज वाइज ए बी सी डी ई क्या आता है 143 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में क्या आता है, क्लॉज बी में क्या आता है, क्लॉज सी में क्या आता है, क्लॉज डी में क्या आता है, सब याद हो जाएगा वो वाला। तो मैं तुमको बता रहा था एक चीज इंपॉर्टेंट, क्या कि एक एमसीक्यू था जहां पे मैंने मिस्टेक की थी, एंड दैट वाज नॉट एन आईसीआई एमसीक्यू एक्चुअली, इट वाज विथ रिस्पेक्ट टू कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। और उसमें से ये 3 पॉइंट यहाँ में से कहीं से भी दे देगा ऊपर में से, और एक पॉइंट ये देगा कि टू सेटिस्फाई दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द applicable FRF, that is financial statement is prepared in accordance with applicable FRF, to satisfy that CFS have been prepared in accordance with applicable FRF। तो ऐसा कोई एक पॉइंट यहाँ से दे देगा एंड बाकी 3 पॉइंट यहाँ से दे देगा, और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पेरेंट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट दैट दे कैन आस्क। ठीक है, समझ रहे हो? और आंसर देगा तुम्हारा एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर से एंड 3 पॉइंट देगा पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और वाइसे वर्सा दूसरा भी हो सकता है, उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर ऑफ द सीएफएस। ठीक है, सो इंपॉर्टेंटली पैराग्राफ 31 ऑफ इंडियस 110 इंपॉर्टेंट है काफी। सिमिलरली एस ऑडिटर ऑफ एक्सक्लूजन, जो ऑडिटर ड्यूटी इन द केस ऑफ एक्सक्लूजन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक पॉइंट जो अभी तक आया नहीं है यहाँ से, विच हैज नॉट येट कम टिल नाउ, ठीक है, वो है तुम्हारा एक तो ये करेंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में इतने सारे जो पॉइंट दिए ना, डू नॉट ट्राई टू मग अप ऑल द पॉइंट्स लाइन बाय लाइन, पूरा बस ट्राई टू रिटेन कि कॉन्सेप्ट क्या थे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिमेंबर। ये एक पॉइंट नहीं आया हुआ है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ऑडिटर विल हैव टू सी क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3, जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन द सीएफएस सेपरेटली फॉर द पेरेंट एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट इंक्लूडिंग फॉरेन कंपोनेंट विच हैज बीन कंसोलिडेटेड। सो ये एक पॉइंट देख लेना, ये आया नहीं है, ऑल्दो लेस लाइकली टू कम, बिकॉज एग्जैक्टली 4-5 नंबर पे बैठेगा नहीं, जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन आता है सीएफएस से, आएगा तो ठीक है। ये क्वेश्चन आया नहीं था, बट एनीवे इट हैज कम attempt before the attempt, like before this attempt। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन से आया नहीं है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन यू कैन ओके फाइन एनीवे मार्क की एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच इज वेरी इजी फॉर अस टू रिकॉल, राइट। मैंने क्या बताया था इसके लिए, पेरेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही रिकॉल करना, पेरेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिकॉल करना, उससे रिलेटेड पेरेंट से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन मांग लेना, पेरेंट के मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग लेना, जो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड देन रिपोर्टिंग, ये पर्टिकुलरली बार बार आते रहता है आरटीपी में, लेकिन ये इतना बड़ा क्वेश्चन आता है कि इट्स नॉट लेस लाइकली दैट इट विल बी आस्क्ड इन एग्जाम। ये पूरा का पूरा पांचों पूछ देता है, पांचों के रूप में बताओ, मे बी दे कैन आस्क एनी वन, मे बी दे कैन आस्क एनी वन, ठीक है, दे कैन आस्क एनी वन, सो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर दैट। सो मोर और लेस वी कवर्ड एवरीथिंग। या सो अपना एनबीएफसी का अलग से टेस्ट ले रहा हूं मैं, ठीक है, एनबीएफसी का अलग से टेस्ट ले रहा हूँ। द टेस्ट शेड्यूल विच आई टोल्ड यू कि मैं शेयर करूंगा एंड ऑफ द डे तक, व्हाट आई थिंक इज कि बीच में मैं अलग से इसका टेस्ट ले लूंगा, और बाकी चैप्टर्स का मोस्टली जिसका टेस्ट शेड्यूल में नहीं है, सो आई विल इन्फॉर्म यू बिफोर एंड। एनबीएफसी का टेस्ट है सपोज तुम्हारा दिस सैटरडे, ठीक है, ये सैटरडे को एनबीएफसी का टेस्ट है। एंड एलओडीआर अभी मैं दे रहा हूँ तुमको, एलओडीआर यू विल ट्राई टू फिनिश ऑफ 1.5 आवर, ठीक है, इनिशियल का ट्राई टू फिनिश इट ऑफ टिल ऑडिट कमिटी, एटलीस्ट ऑडिट कमिटी तुम्हारा हो जाए पूरा। उसके बाद के जो अपने रेगुलेशंस है, अपना चैप्टर का नाम क्या है, ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन केस ऑफ एग्जांपल ऑफ केएएफआर क्या है, ठीक है। एक बार सुनो, एलओडीआर ऑडिट कमिटी पूरा कर लो, 1.5 आवर का है ये। इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो एलओडीआर के बहुत सारे अलग अलग रेगुलेशन है, डेट वी विल स्टार्ट टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। यस, बुक्स आर शिप्ड, आई विल शेयर द रिसिट्स, books are shipped, I'll share the acknowledgement, you can track, most probably you will get the book in 4 to 5 days।
ठीक है। और कई लोग मेरे को ये पूछ रहे थे, पर्सनली मैसेज कर रहे थे, अगेन आई विल टेल यू, कंपाइलर and MCQ book is not included with the batch. Soft copy अगर तुमको चाहिए, so I'll share the link. You'll have to pay for like 199 or something, I don't exactly remember, but soft copy for compiler and MCQ book if you want, then you can pay, ठीक है, separately. Anyway, I don't consider compiler at it. If you want to practice additionally question answer format में तुमको अगर practice करना है तो it is different, because anyway we have covered all the questions more or less. 90 to 95% questions are already covered, and even if it is not covered, I am telling you along with the batch only कि ये क्वेश्चन कब आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है क्या, ठीक है. सो मोर और लेस इसी को कॉम्प्रिहेंसिव बनाते जाओ, बार बार रिवाइज इसी के रूप में करते जाओ. इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर, देन यू कैन गो फॉर कंपाइलर, एंड एनीवे आई वुड रिकमेंड एमसीक्यू बुक, बट ठीक है, एमसीक्यू बुक जरूर जरूर एमसीक्यू सॉल्व करना है. यस, सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो उज्जवल, सॉफ्ट कॉपी अपना संपूर्ण का इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है. संपूर्ण सॉफ्ट कॉपी इज इंक्लूडेड इन द बैच. हार्ड कॉपी, अगर इसकी हार्ड कॉपी चाहिए या इसकी भी हार्ड कॉपी चाहिए, सो सेपरेटली ऑर्डर यू विल हैव टू प्लेस. एंड कंपाइलर और एमसीक्यू बुक की सॉफ्ट कॉपी भी अगर चाहिए, सो सेपरेटली ऑर्डर, विच इज नॉट मच, ठीक है. डेट आई शेयर द लिंक. इससे अलावा और किसी की कोई भी क्वेरी है? सबने ईमेल आईडी शेयर कर दिया, आई होप सो. ईमेल आईडी शेयर कर देना, वरना आज का बैकअप जो है, बैकअप विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन ईमेल आईडी बेसिस ओनली. सॉफ्ट कॉपी क्या बोल रहे हो? सॉफ्ट कॉपी मिला नहीं है सचिन, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि सॉफ्ट कॉपी अगेन आई विल शेयर. जिसको संपूर्ण की सॉफ्ट कॉपी चाहिए, प्लीज शेयर द डिटेल्स विच इज गिवन इन टेलीग्राम चैनल. एक बार डिटेल्स देखना, वहां पे तुमको देना है कुछ कुछ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, आईसीए का रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है सचिन. ये सब डिटेल्स दे दो मुझे, आई विल प्रोवाइड यू इंस्टेंटेनियसली द सॉफ्ट कॉपी. एंड अगेन आई विल रिमाइंड एवरीवन, प्लीज डू नॉट शेयर द सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, संपूर्ण की. यू कैन सी मेहनत है इसमें काफी, एंड आई डोंट वांट एनीवन प्लीज टू शेयर द सॉफ्ट कॉपी, ठीक है. गुड मॉर्निंग अर्नब, अभी मॉर्निंग हो रही तुम्हारी. कंपाइलर एमसीक्यू बुक, यस आई विल शेयर, आई गॉट इट, योर रिसिप्ट, ठीक है. एनी डाउट इन सीएफएस, इन एनबीएफसी? सर कल हाँ. हम क्लास में क्या पढ़ेंगे? बैंक ऑडिट. बैंक ऑडिट, we'll be starting with bank Okay. audit. We'll be daily doing bank audit for 2 hours. I'll try 7 to 9 we'll be doing it bank audit, and then you will be finishing it LODR side by side, ठीक है. आज ऑडिट कॉर्पोरेट गवर्न ऑडिट कमेटी तक कर लो, ऑडिट कमेटी तक कर लो आज. आई विल शेयर द लिंक अभी, इसके बाद अभी ब्रेक ले लो, 8:30 8:35 से चालू हो जाओ वापस से, एंड देन डू दी ऑडिट कमेटी पार्ट एटलीस्ट, ठीक है. डन एवरीवन? चलो फिर, आज के आनंद की, आज के आनंद की जय नहीं है उज्जवल, अभी नहीं हुई, आनंद खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारा बचा हुआ है अभी, ठीक है. जय मत बोलो अभी, आनंद की जय बोलना 10 बजे के बाद, व्हेन यू कंप्लीट द ऑडिट कमिटी. चलो बाय बाय.